और आयन पोलराइजेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, आयन पोलराइजेशन के मिलते जुलते क्वेश्चंस जैसे मैंने आपसे कल पूछे थे वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में नजर आ रहे हैं. सो आई होप दैट वुड बी नाउ इजियर टू डू बिकॉज हम एम्पल प्रैक्टिस इसके लिए कर चुके हैं. ठीक है. सो थर्मल स्टेबिलिटी पे आते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स. लेट मी टेल यू कि जहां तक बात है कार्बोनेट्स की, नाइट्रेट्स की और हाइड्रोक्साइड्स की, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके होते हैं ओ लेवल्स में. सो ये एक पुराना टॉपिक है, ये नया टॉपिक नहीं है. हमने पहले पढ़ा होता है कार्बोनेट्स यूजुअली जब डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स बनते हैं. नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होती है. और ये डिटेल्स जो होती है हमने पहले पढ़ रखी होती हैं. ठीक है. उसमें ओ लेवल्स में. नॉट जस्ट दैट, हमने हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी पढ़ रखा होता है. हमें पता होता है कि हाइड्रोक्साइड्स के केस में जो है ना कहते हैं आपके पास कन्वर्जन में, ठीक है, या थर्मल डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में वाटर और ऑक्साइड फॉर्म होगा. सो द कॉमन प्रोडक्ट in all these three cases is oxide. ठीक है. Whatever the second product may be, that can be a carbon based oxide or a hydrogen based oxide or a nitrogen based oxide. So of course the common product is oxide. So group 2 carbonates decompose their oxides and give carbon dioxide on heating. Okay, the same thing he said over here. So when we talk about their thermal stability, we are actually talking about how long do they take or till what temperature till they can stay in their own form before they start decomposing. So we note that in terms of decomposition temperature and in terms of enthalpy change of reaction delta H naught R. The relative ease of thermal decomposition is shown in the table below. Let's go for a comparison. You would see that magnesium carbonate decomposes at 540, calcium at 900, strontium at 1280, and barium at 1360. And their enthalpy changes are given below. Okay? You would see if you go down the group, because magnesium is present at the top of group 2 and barium is present at the bottom. Okay? So if you go down the group, the temperature is higher, which means the polarity is higher up top or highest at the down bottom. That's a question for all of you, so anyone can answer. Ion polarization is higher on top, highest in magnesium. क्योंकि स्मॉल है ना मैग्नीशियम, तो वीकर हो जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स. ऑलराइट. सो वीकर होने का मतलब ये है कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर होगा, because as far as I knew, if stronger the attractive forces are, more is the temperature required to decompose it. Isn't that so? So वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, तो डिस्टॉर्ट होने की वजह से but this distortion is due to attraction. Isn't that right? This distortion is a sort of attraction, an attraction between the valence electrons of a negative ion and the nucleus of the positive cation. Sir, I think it's opposite. Barium carbonate की सबसे ज़्यादा होगी. अच्छा, तो जो हमने रूल्स पढ़े हैं फिर उनका क्या? यानी अली की बात जो हमने 4 रूल्स कल पढ़े थे उसके हिसाब से किसी हद तक ठीक है. अली ने सबसे पहला पॉइंट पिक किया कल वाले रूल्स में. मैं दोबारा पीछे जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूं, एक फेयर कंपैरिजन हम इसमें कर सकते हो. अली ने बेसिकली ये किया है कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था द कैटायन इज स्मॉल. अली इज राइट. ठीक है. मैग्नीशियम इज स्मॉल एंड बेरियम इज लार्ज. ठीक है. On the other hand, we have just carbonate, so the ion charge or the ion size does not vary. It's just the cation that we are talking about. And in this case, magnesium is +2, calcium, strontium, barium, all of them are +2. So point number 2, 3, and 4 are not applicable over here. Only point 1 is applicable. So Ali, on the basis of point 1, is saying that the polarization is higher in terms of magnesium if compared to barium. He's right about that. Sir, point 3 applicable क्यों नहीं है? Because anion का size same है. All of them are carbonates. एक ही चार्ज है कार्बोनेट का, सारे कंपाउंड्स के लिए एक ही साइज होगा. Sorry sir, I got confused. तो only point 1 is applicable. तो अली ने बड़े आराम से 3 पॉइंट्स को निकाला, एक पॉइंट जो बचता था उसे कंपेयर किया और हमें हमारा आंसर दे दिया.
लेकिन क्या ये आंसर Yes, sir. ठीक है? इसी के लिए मैं बहस कर रहा हूँ. एंड नाउ आई वांट यू टू थिंक बिफोर आई कम अप विद द एक्चुअल आंसर कि रोहमा ठीक कह रही है या अली ठीक कह रहे हैं या ये वाला रीजन है या वो वाला रीजन है. आई वांट यू टू थिंक. ठीक है ना? अली ये कहते हैं कि Sir, फिर डिस्टॉर्शन होने से, मैं अली का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ, डिस्टॉर्शन होने से हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती नहीं है. ठीक है ना? अली के हिसाब से. लिहाजा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती नहीं है तो उनका पॉइंट ठीक होना चाहिए. स्मॉल कैटाइन पर हमारे पास डिस्टॉर्शन ज्यादा होनी चाहिए. मैग्नीशियम में ज्यादा डिस्टॉर्शन हुई तो उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम और बेरियम का ज्यादा. जबकि रोमा इस वक्त ये कह रही हैं कि मेरे वाली बात जो मैंने बाद में कही उससे एग्री कर रही हैं कि डिस्टॉर्शन भी एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है और वो आयनिक से जो ना आयनिक कैरेक्टर के अंदर एक और तरह की हम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं. लिहाजा हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ठीक है ना? और सर वो हमने जो बढ़ रहा है. 4 रूल्स पढ़े थे वो सारे इसी पर बेस कर रहे थे कि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उनमें होगी उसी उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी. जी बिल्कुल बिल्कुल. और अट्रैक्शन की वजह से बढ़ जाना चाहिए टेम्परेचर, कम नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर ये वाली बात जो आप अपने लिए कह रही हैं, इस हिसाब से तो मैग्नीशियम में मोस्ट अट्रैक्शन होनी चाहिए लेकिन टेम्परेचर बेरियम का सर हाई क्यों है. बेरियम में होनी चाहिए? टेम्परेचर तो उसका हाई है. क्यों डिस्टॉर्शन बेरियम में कैसे होगी? मैग्नीशियम इज द स्मॉलेस्ट क्योंकि सर साइज्ड टेम्परेचर कैटाइन. उसका ज्यादा हायर है. इसका मतलब कि नहीं उसके बेटा, अंदर ज्यादा अट्रैक्शन है. ध्यान से एक ऑर्डर में रखिए चीज. पहले कंपाउंड बनता है, फिर बने हुए कंपाउंड में डिस्टॉर्शन आती है, उसके बाद हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं. टेम्परेचर सबसे पहले चेक नहीं होता. सो टेम्परेचर की वजह से कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर बहस होना ये एक थोड़ा सा अनइवन पाथ लगता है, एक रिवर्स पाथ लगता है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद रिवर्स लॉजिक, ट्राई टू गो विद स्ट्रेट लॉजिक. सर फिर आप ही बता दें. सोचें एक दफा, या बेशक आपके पास अगर बुक ऑफलाइन फॉर्म में है तो इससे अगले 2 सेंटेंसेस, 1-2 पैराग्राफ्स पढ़ने की कोशिश करें. ऐसा करते हैं पहले पैराग्राफ्स पढ़ते हैं फिर हम इसी दोबारा डिस्कशन पे आते हैं ताकि हम अपनी बात को फाइनलाइज कर सकें एक चीज से. नाउ हम ये ट्रेंड एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज के हिसाब से. हम वो सारा आइडिया वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इस आइडिया को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बॉटम मोस्ट लाइन पढ़ता चलूं कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो इस तरह से है कि बेरियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और मैग्नीशियम कार्बोनेट लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट बहुत हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसा कि टेबल में भी नजर आ रहा है बहुत थोड़े टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है? ये उसने टेबल भी बनाया और उसके बाद एक रिलेशनशिप भी बनाकर लिख दिया जो ऑफ कोर्स हमें टेबल से समझ आ रहा है. ठीक है? अब हम ऐसे करते हैं कि उसकी बताई हुई रीजनिंग देखते हैं. सही. कार्बोनेट आयन पे रिलेटिवली लार्ज आयनिक रेडियस होता है. सो ये एक छोटे से आयन से स्मॉल हाईली चार्ज्ड कैटायन से बड़ी इजीली पोलराइज होता है. तो ग्रुप 2 कैटायंस में इंक्रीज आयनिक रेडियस का इस तरह से है कि मैग्नीशियम आयन सबसे छोटा और बेरियम आयन सबसे बड़ा है. वही जो अली के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बात कही आपसे. ठीक है? तो स्मॉलर जब होगा आयनिक रेडियस कैटायन का, बेटर होगा वो पोलराइज करने पे कार्बोनेट आयन के. ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है? डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कार्बोनेट आयन की इस तरह से होगी कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पोलराइज कर रहा होगा और बेरियम सबसे कम. यहां तक बात हो गई. अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, easier it is to weaken a carbon oxygen bond in the carbonate and form carbon dioxide on heating the oxide and oxide on heating. ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो अली और रोमा दोनों के पॉइंट्स एक ही साथ क्लियर हो जाते हैं. सर नहीं आई. नहीं, क्लियर कर लेते हैं. वो ये कहता है कि जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो होगा क्या कि जो कार्बोनेट का पूरा आयन है वो बेचारा वीक हो जाएगा. उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे. जब वो वीक हो जाएंगे तो हीट करने पे हमारे पास वो पोलराइजेशन वाला पार्ट तो ब्रेक नहीं करता लेकिन वो जरूर ब्रेक कर जाता है. ठीक? इसके लिए सर आपकी आवाज कट रही है. जी, आवाज कट भी रही हो तो मैं इसको जो ना ड्राइंग की बेस पे समझाना चाह रहा हूँ. तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं एक ड्राइंग के पोर्शन में जहां पे मैं इसे क्लैरिफाई करूंगा. ठीक है ना? मैं दोबारा शेयरिंग चेंज कर रहा हूँ और मैं इसे बाकायदा एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहां मैं एक ओपन व्हाइट बोर्ड पे इस बात को समझा सकूं. ठीक है? जस्ट हम दोबारा इसी बुक के पेज पे वापस आएंगे. ऑलराइट.
जी, सबसे पहले थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि हमारे पास सी सेंटर में होता है और हमारे पास जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो हमारे पास बाउंडेड होते हैं सी से, और ये हमारे पास CO3 -2 नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास इस तरह के चार्जेस होते हैं। अगर आप देखेंगे, इसे पूरे को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स पूरे होते हैं, लिहाजा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन के ऊपर नहीं है। लेकिन एक ऑक्सीजन का सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन, और दूसरे ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड बन रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन। सॉरी अबाउट द पुअर ड्राइंग, बट आई होप दैट क्लैरिफाइज द कार्बोनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पूरा कार्बोनेट स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं इस स्ट्रक्चर को एक गोल दायरे में, बड़े सारे गोल दायरे में कवर कर रहा हूं। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं अपनी ड्राइंग पे। सही, ये क्लियर हो गया? यस अब सर। इस तरफ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होगा, गोल छोटा कैटाइन, और ये कैटाइन कुछ भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो इस कैटाइन को अपनी स्टार्टिंग एग्जांपल के लिए Mg कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन माउस से ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, सो सॉरी। ये Mg+2 है और ये हमारे पास कार्बोनेट है। ठीक, यहां तक ड्राइंग जी क्लियर सर। होती है? Okay, what यस I सर। want you to understand is how this breaks up. ठीक है, उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं आपके पास दोबारा इक्वेशन लिखने जा रहा हूं नीचे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में होता क्या है? हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है MgCO3। ठीक है, ये एक्चुअली रिएक्शन करता है और रिएक्शन में फिर हमारे पास ये, ठीक है, ये हम इसे इस तरह से रिएक्शन एरो को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मेशन होती है इसकी डीकॉम्पोजिशन में, जिसमें हमारे पास MgO फॉर्म होता है प्लस हमारे पास फॉर्म होता है CO2। प्रोडक्ट समझ में आते हैं? प्रोडक्ट्स में Mg के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन कर गया है जबकि CO2 एक पूरा प्रोडक्ट बना है। ठीक, अब ध्यान से समझे पोलराइजेशन को। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात सर बताने आपकी जा रहा हूँ। आवाज स्पीच कट रही है, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। बेटा आप वीडियो से ही देखना पड़ेगा, मैं तो अपनी तरफ से नेट कनेक्शन अच्छे वाला लगाया हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना। अगर कुछ कट रहा है तो कहीं वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं अब मेरे एंड पे नेट इशू है या आपके एंड पे नेट इशू है। अगर एक भी बच्चे को आवाज क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है नेट इशू आपके एंड पे है। अगर सारों नहीं को सर, गलत आ रही मुझे है तो भी इसका नहीं आ मतलब रही। फिर मेरे एंड पे है। ओके, डिस्कनेक्ट करूं तो पूरी क्लास जाएगी, ये डिस्कनेक्ट कर लूं? अगर सबको नहीं आ रही तो फिर तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन मुझे ड्राइंग दोबारा बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक सेकेंड, let me do one small thing in order to boost up the speed. Just a second. हाँ जी, देखिए अब आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ओके, आई होप ये स्टेबल रहे। मैं ये कह रहा था कि इक्वेशन को गौर से देखें, डीकॉम्पोजिशन के स्ट्रक्चर को गौर से देखें। जब पूरे का पूरा MgCO3 डिकम्पोज होता है तो कार्बोनेटाइन अलहदा नहीं जाता बल्कि कार्बोनेटाइन ब्रेक हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि CO3 ब्रेक होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनता है और MgO बनता है। ये बात समझ में आती है इक्वेशन से? जी सर। जी। which means कि this polarization was good enough, and this polarization was so much good that it was able to break this entire structure when this structure was thermally decomposed. जब हम हीट देते हैं तो बेटा हीट देने से होता क्या है, बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसमें से एक पूरा ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रेक होता है और इस पोर्शन से अट्रैक्ट हो जाता है। बाकी का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है किस में, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो ये पोर्शन बनता है। ये चीज समझ में आती है? और सर ये ये जो आयनिक एंटायर, कंपाउंड। नहीं बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ये पहले भी कोवेलेंसी से बना हुआ था, आप देख रहे होंगे मैंने स्ट्रेट लाइन से कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ किए थे। ये चीज याद है ना? और उसका बाकी का पार्ट जो होता है जो आयंस पे डिपेंड करता था, जो एक बड़े पोलराइजेबल कैटाइन पे डिपेंड कर रहा था, उसने क्या किया कि उसने हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड रिजल्ट के तौर पे दे दिया, दैट इज MgO।
So basically what we are trying to say over here is that ion polarization is so successful. And remember, ionic electrostatic forces of attraction are much stronger than covalent. So what happens, thermal decomposition tends to break the covalent part of the structure, but not the ionic part. अब बात समझ में आई? Actually में कहानी बहुत different है. कहानी ये है कि जिस स्ट्रक्चर की बात हो रही है उसके अंदर थोड़ा सा आयनिक पार्ट और थोड़ा सा कोवेलेंट पार्ट एग्जिस्ट करता है, और थर्मल डिकम्पोजिशन से उसका कोवेलेंट पार्ट ब्रेक होता है, आयनिक पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आयनिक पार्ट अपनी पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट पार्ट से भी टूटे हुए एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर लेता है. अब बात समझ में आई? नहीं सर. नहीं अभी नहीं सर आई? समझ नहीं आया. अच्छा ध्यान से समझें कि पूरा जो CO3 नेगेटिव 2 आयन है, जो इतना बड़ा सारा गोल दायरा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सबसे पहले ये समझ लें कि ये एक कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है. ये बात क्लियर हो गई? जी सर. क्योंकि मैंने इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि CO3 नेगेटिव 2 यानी कि जो कार्बोनेट आयन है वो कोवेलेंटली बेस्ड स्ट्रक्चर है. ठीक, और इस स्ट्रक्चर को हमने Mg के साथ कनेक्ट किया हुआ है आयनिक बॉन्ड्स की बेस पर. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर खुद बेशक बना कोवेलेंट बॉन्डिंग से है, लेकिन ये खुद भी एक आयन है और Mg भी एक आयन है. तो उसके बाद रिजल्टेंट बॉन्डिंग कौन सी थी? आयनिक बॉन्डिंग. और जब हमने हीट किया तो आयनिक बॉन्डिंग चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो उससे फर्क पड़ा ही ना, लेकिन जो कोवेलेंटली बॉन्ड पार्ट था स्ट्रक्चर का वो ब्रेक डाउन हो गया, और उसी की थर्मल डिकम्पोजिशन हम पढ़ रहे हैं. सर अब एक ही क्लियर हुई बात? कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट कैसे हो, दोनों कैसे? बेटा सारी एएस भुला दी को खौफे खुदा करें, ये वाला सवाल. अरे एएस में आपको आयनिक कंपाउंड्स डिटेल में पढ़ाए तो हैं, एएस में आप बताया था, और मैं रिवाइज कर देता हूँ, याद करवा देता हूँ दोबारा कि एएस में बताया था कि अगर आपके पास सिंपल आयनिक कंपाउंड हो, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन से बना हुआ, तो वो एक प्योर आयनिक कंपाउंड होता है. लेकिन अगर आपके आयनिक कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन्स हों, ऐसे आयन्स जो एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एग्जांपल्स, अमोनियम, ये एग्जांपल्स जो हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स की हैं जो हैं तो आयन, लेकिन बने किससे हुए हैं? बने हुए हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से. सो आपके पास पॉलीएटॉमिक वाले जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है और उनमें आयनिक बॉन्डिंग भी होती है. एक आयन उनमें ऐसा होता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना होता है, लेकिन दोनों आयन्स जुड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं. तो सर जो कोवेलेंटली बॉन्डेड पोर्शन होता है वो जो है ना ब्रेक डाउन होता है ना, आयनिक पोर्शन वाला जो है ना वो नहीं ब्रेक डाउन वो होता, ब्रेक डाउन ज्यादा नहीं स्ट्रांग होता, होता है. ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से. यही तो ट्रिक बता रहा हूँ. इस कंपाउंड में थर्मल डिकम्पोजिशन गो के पूरे कंपाउंड की हो रही है, लेकिन टूट असल में कोवेलेंट वाला पोर्शन रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग बहुत वीक होती है. ठीक. आयनिक की बॉन्डिंग इतनी वीक नहीं होती, नंबर एक. नंबर दो, आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के अलावा पोलराइजेशन से और स्ट्रांग करती है, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो टूटे हुए हिस्से होते हैं उन्हें भी अपने साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है. अच्छा, अब ये आपको इस तरह से समझने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना इसे और एक और अंदाज में समझते हैं. समझे? जी सर. ठीक है. आपको याद होगा मैंने बॉन्डिंग हमेशा जो है ना एक एग्जांपल से सिखाई है, जिसमें हम पैसे शेयर करते थे और कैंटीन पे जाते थे. सही? सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही. just a second, let me think. 12:20 तक हमारे पास बनते हैं roughly 35 minutes if I'm not wrong, right? हमारे पास 40 minutes का क्लास सेशन होता है. Let's break this class session, ठीक है? और हम इसे दोबारा शुरू करते हैं. सही, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर संभाल रहा हूँ और हम इसे दोबारा शुरू करेंगे इसी डायग्राम से. ठीक है ना? मैं अभी क्लास एंड कर दूंगा, आप अभी ब्रेक ले लें और फिर हम एक स्ट्रेट लंबा 40 मिनट्स का लेक्चर 12:20 तक जितने भी मिनट्स का लेक्चर बनता है वो करेंगे और उससे समझेंगे. ठीक है? ओके. योर ब्रेक हैज स्टार्टेड. यू आफ्टर 5 मिनट्स 11:50. इन दैट वे मैं अपना राउटर भी रीस्टार्ट कर लूंगा और रिकॉर्डिंग भी सेव कर लूंगा. ठीक है? मुझे इतना टाइम लग जाएगा. ओके.
11:50. Allah Hafiz class. Allah Hafiz.